Hello class, welcome back to the study studio. Today we are going to study about contribution of Henry Fayol in the field of management. Earlier we have studied about Frederick Taylor, who is also known as the father of scientific management. Now we are going to study about Henry Fayol. He was the French engineer as well as industrialist. He gave these principles in the book named Industrial and General Management in 1961. His principles are followed till today also. He has given principles in two forms: administrative principles and management principles. There are total 6 administrative principles given by him and 14 principles regarding management. First of all, we will study about management principles. There are 14 principles, namely division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordinate interest to general interest, remuneration of personnel, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure, initiative, and esprit de corps. All these 14 principles are given by him, which we will study today. From these 14 principles, today we are going to study only 7 principles so that तुम्हारे माइंड में भी लोड ना हो and you understand all these principles easily. First principle is division of labor of work. By its title only we can understand that division of labor of work, that means हर एक का काम divide कर दिया गया है. Here only one person is not responsible to do all the work. Each and every worker has been given the work according to their ability, according to their efficiency. So, for example, if someone is expert in accounts, he is given the work of accounting. If someone is expert in selling, he is given the work of selling. If someone is expert in other work, then they are particularly given those work only in which they are expert and not the others. हर एक जन को सारा काम नहीं दिया जाता और जिसमें जो स्पेशलाइज्ड है उनको वही काम दिया जाता है. जिससे होगा क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. इफ़ तुम्हें कोई पर्टिकुलर काम दे दिया है, देन यू विल बिकम specialized in those fields and can achieve the maximum utilization of that particular field to increase efficiency of employees and manager. if तुम्हारे पास कोई एक ही काम होगा तो तुम वो काम में स्पेशलाइज हो जाओगे, साथ ही साथ तुम्हारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी. तुम्हारी यानी मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ दोनों की ही एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. थर्ड, शुड बी डन एट मैनेजरियल एंड फैक्ट्री लेवल. ये कौन से लेवल पे होता है? तो मैनेजरियल एंड फैक्ट्री लेवल. दैट मीन्स एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स दोनों के लिए ही एसेंशियल है दैट ईच एंड एवरी वर्क शुड बी डिवाइडेड. एक ही काम या सारे काम एक ही जन को नहीं देंगे हम, जिससे एक के ऊपर बर्डन नहीं आएगा. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर्स टू डिवाइड वर्क एफिशिएंटली in a fruitful manner. Second principle is authority and responsibility. Both seems to have the same meaning but they are different. Authority means power and responsibility means zimmedari. So here authority and responsibility both are different. Authority, again I am repeating, authority means power and responsibility means zimmedari. Authority, ये पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है दैट एक पर्सन लीड कर रहा है और बाकी के उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं अथॉरिटी. अगर तुम किसी को अथॉरिटी दे रहे हो, उसका मतलब तुम उनको बोल रहे हो कि तुम्हारे पास ये पावर्स है कि तुम्हें किसको आगे और पावर्स देने हैं या तुम ये काम किससे करवा सकते हो. दैट मीन्स तुम्हें पावर्स असाइन किए गए हैं. गिविंग अथॉरिटी मीन्स गिविंग पावर्स टू अदर्स. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो यहाँ पे पिक्चर में, अथॉरिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी यानी एक के बाद एक ऑर्डर्स नीचे फ्लो होते जाते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स इफ़ समवन इज़ गिविंग यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी का मतलब है तुम वो काम के लिए ज़िम्मेदार हो कि तुम्हें किसको ये काम करके देना है.
एंड ऑथोरिटी का मतलब ये लाइन तुम देख रहे हो ये फ्लो कर रही है नीचे, दैट मीन्स इसके पास ज़्यादा ऑथोरिटी है, देन इन्होंने इसको पावर्स ट्रांसफ़र किए, ये पावर्स से ये इनसे काम करवा सकते हैं, इनके पास पावर्स होंगे तो ये नीचे वालों से काम करवा सकते हैं, दैट मीन्स ऑथोरिटीज फ्लोज फ्रॉम दिस वे एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट फ्लोज फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ऑथोरिटी टॉप टू डाउन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इनको रिस्पॉन्सिबल है, ये इनको रिस्पॉन्सिबल है और ये इसको रिस्पॉन्सिबल है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ग्राफ अपवर्ड जाएगा, ऑथोरिटी का ग्राफ डाउनवर्ड आएगा। आई होप दिस विल क्लियर। इसमें सम पॉइंट्स कंसिडर्ड हमें जो करने चाहिए। फर्स्ट, बोथ आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में ही होने चाहिए, ये एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। ऑथोरिटी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ऑथोरिटी वर्क नहीं करेगा। इट इंक्रीजेज द एम्प्लॉयज़ एंथुजियाज्म, दैट मीन्स इफ़ तुम किसी को पावर्स देते हो देन उनको लगता है कि हाँ मैं भी सुपीरियर हूँ, मेरी भी वैल्यू की जा रही है, तो दे फील मोटिवेटेड, दे फील एंथुजियास्टिक और वो अपने काम अच्छे से करते हैं। So it increases the enthusiasm of employees. While assigning powers, post of employees, their qualification, knowledge, experience and other things are to be considered. तुम किसी को ऐसे ही नहीं दे दोगे पावर्स, तुम इसको पावर्स दे रहे हो लेकिन इसके पास नॉलेज ही नहीं है तो तुम इसको पावर्स दे के क्या करोगे। अब ये नीचे पावर्स दे रहा है, उनके पास क्वालिफिकेशन ही एक्सपीरियंस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है और तुम उनको पावर्स दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट वाइल असाइनिंग दी पावर्स, उन एम्प्लॉयज़ की पोस्ट, क्वालिफिकेशन, नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती है। थर्ड पॉइंट इज़ डिसिप्लिन। Discipline, it is very much necessary in each and every type of organization, even in schools, even in your house, at anywhere you are going. Discipline is a must factor to maintain the harmony in the organizations. Now, what does the discipline do? It create harmonious environment, जिसका मतलब कि तुम्हारे काम अच्छे से कर सकते हो विदाउट एनी टाइप ऑफ हर्डल्स। तुम्हें पता है कि हमारे बिजनेस में अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है, डिसिप्लिन से ही काम हो रहा है, टाइम टू टाइम तुम्हें आने दे रहे हैं, तुम्हें टाइम पे ही लीव मिल रही है। सो इट क्रिएट हारमोनियस एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं कि बर्डन है तुम जल्दी आओ लेट तक जाओ, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। एनवायरनमेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही जा रहा है, दैट मीन्स इट क्रिएट हारमोनियस एनवायरनमेंट। सेकेंडली, व्हेन एम्प्लॉयज़ आर मोर कंट्रोल बिकम्स ईजी बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। अगर एम्प्लॉय ज़्यादा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उन पे कंट्रोल करना इतना इजी नहीं होगा इफ़ डिसिप्लिन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, कोई स्कूल में टीचर को देख लो, दैट ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो उनके लिए इजी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज कर सके स्टूडेंट्स को ईजीली। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ ज़्यादा मेम्बर्स है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, देन इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट टू मेंटेन दीज एम्प्लॉयज़, फॉर दैट डिसिप्लिन इज़ वेरी मच नेसेसरी। एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट इन जॉब इंक्रीजेस। इफ़ डिसिप्लिन होगा तो वो जॉब अच्छे से करना चाहेंगे और उनको जॉब सेटिस्फेक्शन भी होगा। पनिशमेंट एट एवरी लेवल। इफ़ कोई भी पर्सन रूल्स तोड़ रहा है या रूल्स को ब्रेक कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 o'clock का टाइम है ऑफिस का और कोई 11 o'clock को आ रहा है, देन उसकी सैलरी डिडक्ट होनी चाहिए। सो वो सारे रूल्स सिर्फ एम्प्लॉय लेवल के लिए नहीं बल्कि मैनेजर लेवल के लिए भी अप्लाई होने चाहिए। पनिशमेंट एट एवरी लेवल, सो दैट एम्प्लॉयज़ को भी लगे कि हाँ सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ टीचर्स लेट आ रहे हैं तो टीचर्स की सैलरी कट होगी, वो ठीक है, बट इफ़ प्रिंसिपल लेट आ रहे हैं तो प्रिंसिपल की सैलरी भी कट होनी चाहिए, और इफ़ स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल परफेक्ट है दैट पनिशमेंट एट एवरी लेवल, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, सबको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कोई भी एक ही पर्सन ऑर्डर देगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे क्लास टीचर कोई है
और तुम्हें बाहर से कोई ऑर्डर्स देके जा रहे हैं टीचर्स, 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर, और तुम्हें क्लास के टीचर्स कुछ और बोल रहे हैं, तुम्हारे क्लास टीचर, तो तुम किसकी बात मानोगे? ये तुम्हारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है एक ही पर्सन ऑर्डर देगा और बाकी सब फॉलो करेंगे, एक ही टीचर ऑर्डर देगी और बाकी सारे स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। दिस क्रिएट्स यूनिटी अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़। उनको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि हमें किसकी बात माननी है किसकी नहीं। तो एक ही पर्सन होना चाहिए जो हमें ऑर्डर्स देगा और बाकी सारे पर्सन्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी देखो पिक्चर में, एक पर्सन जो ऑर्डर दे रहा है, बाकी सारे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम सजेशंस नहीं दे सकते, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। ये सारे लोग सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन ऑर्डर कौन देगा? सिर्फ ये पर्सन, बाकी सारे इसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है इफ़ तुम कोई गलत काम कर रहे हो या तुमसे कोई गलती हो जाती है या तुम्हें काम समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें आके वो करेक्ट कौन करके जाएगा? उसके लिए भी तुम्हें कोई पर्सन चाहिए, और 3-4 जन तुम्हें आके बोल रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी वैसे करनी है, दूसरा जन आके बोल रहा है ये चीज़ ऐसे नहीं करनी वैसे करनी है, तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि तुम्हें किसकी बात माननी चाहिए या किसकी बात नहीं माननी चाहिए। यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है एक पर्सन तुम्हारे काम को कंट्रोल कर रहा है या तुम्हारी हेल्प कर रहा है, बाकी सारे पीछे फॉलो करेंगे। दैट मीन्स एक पर्सन है जो तुम्हें गाइड कर रहा है, तुम्हें और किसी की बात नहीं सुननी। अगर ये लास्ट वाले से गलती हो रही है तो ये लोग उसको जो बात बोलेंगे उसको ध्यान में देनी है, लेकिन जो मेन डिसीजन होगा वो इसका होगा। यानी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक जन सबको डायरेक्शन दे रहा है। आई होप पिक्चर्स आर मेकिंग क्लियर ऑल द थिंग्स। Now next principle is subordinate of individual interest to general interest. That means employees और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी अर्न करनी होती है और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट सेकेंडरी फैक्टर में रखा जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट प्राइमरी फोकस दिया जाता है। हम रीड करते हैं, इट मीन्स एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट शुड बी कंसिडर्ड सब्सिडरी एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट शुड बी गिवन इम्पॉर्टेंस। एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट है उसको सब्सिडरी फैक्टर में रखा जाता है और ऑर्गेनाइजेशन का फैक्टर दैट इज़ टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सुपीरियर। एंड 7th फंक्शन इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल यानी एम्प्लॉयज़, रेम्यूनरेशन यानी उनके सैलरी वेजेस। तो हमें उनको सैलरी और वेजेस कौन से हिसाब से देनी है? आइडियल वेज रेट, दैट मीन्स कि जो जितना काम कर रहा है उसको उतनी सैलरी मिलनी चाहिए। अगर कोई कम काम कर रहा है तो उसकी सैलरी कम, और जो अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो ही शुड बी गिवन बोनस, इंसेंटिव्स और मोर सैलरी एज़ कम्पेयर टू अदर वर्कर्स। रिड्यूस लेबर टर्नओवर, हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में देखा था लेबर टर्नओवर का मतलब। लेबर टर्नओवर यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ बार बार आ रहे हैं और लीव कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर। इफ़ तुम अच्छे रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करोगे तुम्हारे पर्सनल को, तो वो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएंगे, जिससे तुम्हारा क्या होगा? लेबर टर्नओवर कम होगा, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ योर कंपनी। नाउ यहाँ पे रेम्यूनरेशन तुम जब दे रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसके अंदर तुम प्रमोशनल स्कीम्स भी ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे बोनस देना या फिर उनको कोई अलग इंसेंटिव्स देना, उनको प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा शेयरिंग देना, या उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ करना, सबके सामने उनको अप्रिशिएट करना। तो दिस ऑल विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड मोटिवेशनल लेवल ऑफ द वर्कर्स, विच विल रिजल्ट इन दैट वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करेंगे। आई होप ऑल these 7 principles are clear. Again we will repeat all these 7 principles. Division of labor of work, authority and responsibility. Wait, I am opening the slide so that you can also revise easily. See, division of labor of work, authority and responsibility. Third, discipline, unity of command, unity of direction, subordinate interest to the general interest, remuneration of personnel. We have studied these 7 principles. Next 7 principles
are to be studied in next video. I hope all these 7 principles are clear to you. If you are having any doubt, please mention it in comment section. Thank you for watching the video.